Write down next problem. An eye section of made up of three rectangles as shown in figure. Find the moment of inertia of section about the horizontal axis passing through the center of gravity of section. So this is the eye section having dimension 60 mm. Depth of this 20 mm. This is 100 mm. This will be 20 mm. And bottom flange 100 mm. अब इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? वाई वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल है. तो फर्स्ट स्टेप लिखिए. As the section is symmetrical about y-y axis, therefore its CG will lie on y-y axis. And let us consider bottom of the wave bottom of the flange कीजिए. Bottom of the flange be the axis of reference. तो यहाँ पे ये टॉप फ्लेंज है, ये बॉटम फ्लेंज है और ये है आपका वेव. Okay, so I will just draw here. So this is the axis of reference. After that calculate. So I will just assume here the segment 1, 2 and 3. So these are the segment. Now calculate the area
of segment 1, that is A1 is equal to 100 into 20. 100 into 20, which is equal to 2000 mm square, and y1 is equal to, तो यहां पे y1 कहां पे एक्ट होगा, ये सेगमेंट 1 है, ठीक है, सिमेट्री आपका y y एक्सिस को है, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज द y y एक्सिस, तो इसका CG जो है सेगमेंट 1 का कहां पे एक्ट होगा, सेंटर में, किसके सेंटर में, हाइट के सेंटर में, मतलब यहां पे एक्ट होगा, सो दिस इज द y1. सिमिलरली इस सेगमेंट का इसके हाफ में एक्ट होगा, so this distance is nothing but y2. और तीसरा जो सेगमेंट है आपका y3, ये रेफरेंस एक्सिस के लिए लेके इसके सेंटर तक ये रहेगा आपका y3. तो y1 देखो यहाँ पे इसका डेप्थ कितना है 20, तो 20 डिवाइड बाय 2, so y1 is equal to 20 divided by 2, which is equal to 10 mm. Similarly A2 is segment 2, उसके डायमेंशन क्या है 100 हाइट है और विड्थ कितना है 20 mm, 100 by 20, so I will write here 100 by 20, which is equal to 2000 mm square, and y2 is equal to, तो y2 कहां पे एक्ट होगा, इस सेगमेंट के सेंटर में, हाइट कितना है 100 डिवाइड बाय 2, प्लस क्या करना पड़ेगा 20, यस, so I will write here 20 plus 100 divided by 2, so it will be 70 mm. Similarly A3 is equal to, अब A3 कौन सा है आपका सेगमेंट, दिस वन, डायमेंशन कितना है 60 mm by 20 mm, 60 into 20, which is equal to 1200 mm square, and y3 is equal to, y3 कहां पे एक्ट होगा, इस सेगमेंट के हाफ में एक्ट होगा, पर 100 आपको प्लस करना पड़ेगा, 20 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रेफरेंस आपका बॉटम है, 20 plus 100 plus 20 by 2, so this is the y3, so I will write here 20 plus 100 plus 20 by 2, which is equal to, yes, 130 mm. So I will calculate here, y bar is equal to A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 divided by A1 plus A2 plus A3. Just put the values. A1 is 2000 into 10 plus 2000 into 70 plus 1200 into 130 divided by 2000 plus A2 2000 plus A3 1200. So this is the y bar. Y bar is equal to 60.77 mm. So this is the distance
between the center of gravity of section and reference axis. After that, last step, moment of inertia. Moment of inertia about x axis. Which is equal to moment of inertia of segment 1 about x axis plus moment of inertia of segment 2 about x axis plus moment of inertia of segment 3 about x axis. So this is the I section. So what is the top flange width? 60. Yes, 60 mm. What is the depth of this? 20 mm. Again, what is the depth of this wave? Yes, 100 mm. And this thickness of bottom flange is 20 mm. Okay. So we have solved the y bar. Before that, I will just select here section 1, 2 and 3. These are the three segments we have assumed, and respectively we have calculated the area. Also we have taken the bottom of this plane as a reference axis. Okay, and this distance will be the y1. Bottom is 100. Okay, width of this bottom is 100. तो ये आपका y1 था. उसके बाद अभी इस दूसरा जो सेक्शन है रेक्टेंगल सेक्शन, तो उसका CG कहाँ पे एक्ट होगा? आपका रेफरेंस एक्सिस बॉटम में है, तो इसके हाइट जो भी है उसके हाफ में आपका CG एक्ट होगा. इंडिविजुअल CG हाफ में मतलब यहाँ पे एक्ट होगा. तो उसका हाइट कितना है, डेप्थ कितना है? 100 है. बरोबर है. तो इसके हाफ में आपका CG एक्ट होगा. तो वो जो रेफरेंस एक्सिस से इज सेंटर ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द y2, isn't it? After that, third section, उसका CG इसके हाफ में एक्ट होगा, मतलब 20/2. और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, दैट इज द y3. ये हमने फाइंड आउट किया था. उसके बाद y बार भी फाइंड आउट किया था. तो y बार को हमें यहाँ पे लोकेट करना है. y3 का कितना था वैल्यू? 130. ठीक है. तो आपका जो y बार कितना था? 60. मतलब आपका जो x एक्सिस है वो कहां पे होगा? समवेयर हियर. So this is the x axis. As we know, this diagram is symmetrical about the y axis. Okay, and this distance from the reference axis, it is called as the y bar, which is equal to 60.77 mm from the reference axis. तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस रेफरेंस एक्सिस से x एक्सिस का, तो वो कितना है? 60.77 mm फ्रॉम द बेस. यहां तक हमने सॉल्व किया था. यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल डायग्राम निकालने का, उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया इज नथिंग बट ब्रेथ इनटू डेप्थ. ठीक है ना? ब्रेथ इनटू डेप्थ, तो उसका एरिया हो जाएगा. उसके बाद y1, y2 और y3, ये कैसे फाइंड आउट करने के? जो भी सेगमेंट है उसके हाफ में CG उसका एक्ट होगा. रेक्टेंगल है, बराबर है. रेक्टेंगल होगा तो उसके हाफ में एक्ट होगा. रेफरेंस पॉइंट से उस CG का डिस्टेंस मतलब y1, y2, y3 रिस्पेक्टिवली जैसा सेगमेंट है उसके हिसाब से वो डिस्टेंस आ जाएगा.
और उसके बाद हम y बार फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 by a1 plus a2 plus a3. So we'll get the y bar. तो ये y bar हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन. हमारा टास्क क्या है? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस को फाइंड आउट करना है. सो राइट डाउन मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia about horizontal axis horizontal axis मतलब क्या है? x x आ जाएगा which is equal to moment of inertia of segment 1 about x-x axis plus moment of inertia of segment 2 about x-x axis, and third one is moment of inertia of segment 3 about x-x axis. अभी तीन जो सेगमेंट है आई सेक्शन में, बॉटम फ्लेंज, वेव और टॉप फ्लेंज, तो हर एक सेगमेंट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, आई एक्स एक्स आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर. ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो यहां पे मैं लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेगमेंट 1 अबाउट एक्स एक्स एक्सिस इज नथिंग बट आई जी वन मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेगमेंट 1 अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेगमेंट 1 अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस a1 h1 स्क्वायर. Similarly, moment of inertia of segment 2 about the x-x axis, that is Ig2 plus A2 H2 square, and last term Ig3 plus A3 H3 square. सो Ig1 मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेगमेंट 1 अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब x एक्सिस को. ये आई सेक्शन, ये सेगमेंट 1 है. तो यहाँ पे B क्या है? 100 mm. ब्रेड्थ क्या है इसका? विड्थ कितना है? 100 mm. और डेप्थ कितना है? 20 mm. तो इसको फॉर्मूले में मैं लिखता हूं. रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है? BD क्यूब बाय 12. BD क्यूब बाय 12. तो यहाँ पे सेगमेंट 1 है, इसलिए B1 D1 क्यूब बाय 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर. सिमिलरली सेकेंड टर्म D2 क्यूब बाय 12 प्लस A2 H2 square, and last term D3 cube by 12 plus A3 H3 square. Now put the values. तो पहले सेक्शन के लिए B क्या है? 100 mm और हाइट कितना है? D कितना है? 20 mm. So just put the values.
b is equal to 100 into 20 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस, अभी A1 कितना है, एरिया 1 कितना है सेगमेंट 1 के लिए 2000, सो आई विल डायरेक्टली पुट द वैल्यू 2000 इनटू, अभी H1 फाइंड आउट करना है, H1 फॉर सेगमेंट 1, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको y बार पता है, ये y बार है, तो y बार में से ये डिस्टेंस आपने डिडक्ट किया, सो यू विल गेट द this distance, it is called as the H1. So y bar कितना है 60.77 minus y1 10, तो 50.77. So write down here 50.77 स्क्वायर प्लस, अभी सेकेंड का सेगमेंट, जो सेकेंड सेगमेंट है आपका वेव, इट इज कॉल्ड एज द वेव, तो उसका एरिया कितना है 100 इंटू 20, ठीक है। अभी इसमें b क्या है, इसका विड्थ कितना है 20, ये विड्थ है, और ये क्या है इसका डेप्थ है, डेप्थ कितना है 100 mm, so I will write here 20 into 100 cube divide by 12 प्लस एरिया कितना है, A2 कितना है 2000 है, 2000 into, अभी H2 फाइंड आउट करेंगे, H2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे देखो y2 और y बार का जो डिफरेंस है y2 और y बार, अभी y2 बड़ा है तो y2 से y2 माइनस y बार करेंगे, मतलब ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, दिस वन, सो दिस इज द H2, कितना आता है वो 9.23, yes. So I will write here 9.23 स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म हो गया। सिमिलरली अभी थर्ड है, थर्ड टर्म देखिए, प्लस अभी थर्ड, इसमें जो थर्ड सेगमेंट है टॉप फ्लेज, उसका b क्या है 60 mm और डेप्थ कितना है 20, मतलब b 60 mm और d 20 mm, so I will write here 60 into 20 cube by 12 प्लस एरिया कितना है A3 1200, ओके 1200 इंटू, अभी H3 फाइंड आउट करना है आपको, तो H3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी यहां पे देखो, अभी y3 यहां पे है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, और y बार यहां पे आ जाएगा x एक्सिस पे, ठीक है। तो आपका H3 क्या है दिस डिस्टेंस, तो क्या करना पड़ेगा y3 माइनस y बार विल गेट द डिस्टेंस ऑफ H3 69.23, correct. So I will write here 69.25 square. Just do the calculation.
tell me the answer of this part, first part, or you can say moment of inertia for the first segment. So the answer for this part is 5.2219 into 10 raised to 6 years, plus what is the answer for this second part? 1.8371 into 10 raised to power 6 plus 5.7914 into 10 raised to power 6. If you add these three terms, we'll get the answer 12.8504 into 10 raised to 6. What is the unit of moment of inertia? mm raised to 4. So this is the Ixx.